Today we will start with the standard portion cost. So to understand the standard portion cost, we have to understand the methods, why we calculate and why we need to calculate the standard portion cost. Okay. So here we will understand all these concepts in detail with the all these methods which we applying for the calculating the standard portion cost. Here we are not calculating the sales cost which we are going to apply in our menu card. Here we just wanted to calculate the ingredient and all these items which we are used for the prepare the final product. Okay, final product for serving the guest. The menu part we will discuss later, okay, in upcoming slides. So here they have mentioned the standard portion cost. A standard portion cost can be calculated for every item which we are going to use for preparing our final product for our F&B operation. So this is calculated for every item on every menu, provided that the ingredient portions, proportions, and the production methods and the proportion size have been standardized as previously discussed. So whenever we are going to calculate the portion cost, we need to understand all these things first. Provided ingredient, what type of proposition we are using, proportions मतलब कि हम किस रेशो में उसको यूज कर रहे हैं. Okay, then what production methods we are applying, whether we are applying the baking method or we are applying the frying or any other method for preparing the our final product. To calculating standard portion cost, require that one determine the cost of each ingredient used to reproduce a quantity of a given menu item, add the cost of the individual ingredient to arrive at the total, and then divide the total by the number of the portion produced. Okay, so to determining these cost, which is the standard portion cost, we need to understand what is the cost which we have used for the each ingredient by dividing all these ingredient for the all these ingredient and the total ingredient. We will calculate the portion which we have produced or which we have made in the prepared area. Okay, this is the one concept. Second, moving further to the next concept, which is the which also pertaining the standard portion cost. So it's defined as the dollar amount. The standard portion cost defined as the dollar amount that a standard portion should cost given the standard and the standard produced for its production unit. The standard portion cost for given menu item can be viewed as a budget. Okay, for one portion size. There are several reasons and the cause for determining the standard portion cost. The most obvious cause is that one should have the reasonable clear idea to what they are going to produce and what they are going to make the final product before establishing the menu sales price. Okay, so they have mentioned that always we whenever we are going to calculate the standard portions cost, it always calculated in the dollar amount. Okay, if you are in our country, we can also calculate in INR. There is no problem. Okay, so these cost always calculated in the currency in currency. Okay, whether it INR, AUD, USD, GBP, any currency. Okay, as per your situated F&B operation business. Okay, so these portion cost are helps us to make a clear idea that how much cost we are applying for preparing our final product or final item before serving the client.
So whenever we calculate all these costs, then after we will calculate all these sales price which we are going to apply to the guest and charge from the guest. Okay, by mentioning in the menu card. बट अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी कितनी कॉस्ट इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में लगी है, तो वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द सेल्स प्राइस। ओके, कि हमें कितने प्रॉफिट के साथ किस आइटम को सेल करना है। so it will be very difficult to understand or to mentioning the all these prices when when if we are not aware about the standard portion cost। और ऊपर वाले हमने कंसेप्ट में पढ़ा है कि स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी कहाँ से निकलती है, जो हमने उसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, क्या उनका हमने प्रोपोर्शन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्शन मेथड हैं वो कौन से हैं, ये सभी मिला के हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हो सकता है जो कुकिंग के मेथड्स हैं वो भी आपके, अगर बेकिंग वाला है तो शायद वो उतना वो रीजनेबल हो, लेकिन अगर दूसरे आपके मेथड्स हैं जैसे फ्राइंग मेथड है, ठीक है, बॉइलिंग मेथड है, ये अगर आपके मेथड्स हैं तो शायद हो सकता है उनकी कॉस्ट क्या हो, हाई हो, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो दे दीज ऑल मेथड्स विल आल्सो बी also help to determine the standard portion cost. Moving further to the next part, which is the methods. How do we calculate the standard portion cost? So they have mentioned this is the first method. Okay, we will discuss the three method. How do we calculate the standard portion size with the help of these method? So there are several methods for calculating the standard portion cost. The first method is formula. For many For many of the menu items prepared in the food service establishments, determining the standard portion cost can be very simple. For a large number of items, one may determine portion cost by means of this formula. This is the formula they have given. By using this formula, we can determine the standard portion cost. To understand this formula, you can, I can, just a moment. Huh? We are just going to mention with the help of the whiteboard. So they have mentioned the formula for calculating. This is the first method to calculate standard portion cost, which is, you can mention here the standard portion cost is equals to purchase price per unit purchase price which we have purchased from our vendor. Then we have to divide from the all the number of the portion per unit. We have to divide number of portions per unit. This is the formula which we have to use to calculate the standard portion cost by first method, which is the formula method. First method is formula. To calculate the standard portion cost. Now we are going to see one example which they have mentioned. Uh, which they have mentioned over here. For example, if we are going to consider an establishment serving eggs on the breakfast, हमारा कोई फूड कोर्ट है जिसमें हम
एग सर्व करते हैं ब्रेकफास्ट में, तो वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश दी स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट. ओके, so to understand these we have to now we are moving further to understand the example so that we can make the better clarity. So menu with 2x as a standard portion. First they have mentioned 2x. 2x मतलब दो, जो आप जिनके 2x हैं, जो कि इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं अपने स्टैंडर्ड के तौर पे फॉर दी स्टैंडर्ड, दीज आर दी स्टैंडर्ड पोर्शन. अब आपको यहाँ पर से स्टैंडर्ड पोर्शन का मतलब भी समझ आएगा. 2x, इसका मतलब है जब ये एक व्यक्ति के लिए अगर एग ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तो उन्होंने एक ब्रेकफास्ट के लिए दो जो एग हैं उनको आइडेंटिफाई किया है एज अ स्टैंडर्ड पोर्शन. सो दिस इज द स्टैंडर्ड पोर्शन. ओके, यानी कि जब हम दो एग का एक ब्रेकफास्ट बनाएंगे, सो दैट इज द स्टैंडर्ड पोर्शन फॉर दी वन ब्रेकफास्ट ओनली. ओके, देन व्हाट दे हैव said, the one determine the, okay, one can determine the standard cost of portion of the egg. We can determine the standard cost for the eggs because we already know the standard portion for one breakfast by dividing the cost of the 30. They have the 30 dozen case. Okay, they have the 30 dozen case of eggs. सो द क्वेश्चन इज विल, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है. ठीक है, इनके पास 30 दर्जन जो केस है अंडों के हैं अभी. ठीक है, और जिनकी कॉस्ट क्या है 41.40. जो 30 दर्जन अंडे इनके पास हैं उनकी कॉस्ट है 41.40. अब हमें इससे क्या करनी है, निकालनी है हमें स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट. यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया. तो अब हमें पता है इसमें हम कैसे निकालेंगे इसको. अब हम इसको देखते हैं ऐसे. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पोर्शन साइज क्या है. एज पर द क्वेश्चन द पोर्शन साइज फॉर वन ब्रेकफास्ट is equals to 2x. Okay, now they have given the 30 dozen cases. As per the question we are having the 30 dozen, the 30 dozen case of eggs. उनकी कॉस्ट कितनी है, डॉलर. द कॉस्ट ऑफ द 30 dozen case is $41.40. अब हमें इसमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट. ठीक है, अब इसको निकालने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए परचेज प्राइस क्या है. परचेज प्राइस ऑफ दी, परचेज प्राइस पर यूनिट के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें इन्होंने दिया हुआ है. क्या है हमारे पास परचेज प्राइस, ये पर यूनिट का नहीं, ये इनका क्या है, ये है आपका पर केस. ठीक है, ये $41.40 पर केस है. अब इनके पास 30 दर्जन के केसेस हैं. ठीक है, अंडों के. अब हमारा क्या है, स्टैंडर्ड पोर्शन का जो फॉर्मूला है वो है परचेज पर प्राइस यूनिट, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ पोर्शंस पर यूनिट. ओके, अब पर यूनिट को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक ब्रेकफास्ट में कितने अंडे लगते हैं.
2 अंडे लगते हैं, लेकिन हमारे पास 3 दर्जन है। अब ये तो मेंशन होने कि हम अब इसमें से कैसे निकालेंगे कि जो टोटल नंबर हैं वो कितने होंगे। अब इसको निकालने के लिए पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने होते हैं। 12। एक दर्जन इज इक्वल टू कितनी क्वांटिटी होती है? 12। हाँ 12 होती है। और हमें कितने दिए हुए हैं? केस कितने हैं हमारे पास? 30। 30। तो अब हमें टोटल अगर उनकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी तो कितने अंडे हैं हमारे पास? 30 इंटू 12। 12। सॉरी। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएंगे, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 360। 360 हो जाएगी। अब 360 हो जाएगी। अब हमें पता है कि हमारा एक ब्रेकफास्ट कितने अंडों से बनता है? 2। 2 अंडों से। तो हमें ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड पोर्शन, ये हमारी एक एक यूनिट हो गई है। ठीक है, एक यूनिट हो गई। अब हमें पर यूनिट निकालने के लिए हमें इसको, ये तो हमारे टोटल हैं, हमारे पास 360 अंडे हैं। अब हमारा बनता है 2 अंडों से एक ब्रेकफास्ट। तो हम ऐसे कितने ब्रेकफास्ट बनेंगे? ठीक है, अब हमें यूनिट निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको 360 से। नाउ वी हैव टू मेंशन 360 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे कितने ब्रेकफास्ट बनेंगे? 180। ठीक है, तो हमारी कितनी यूनिट होंगी? वो होंगी 180। तो अब हमारे पास दोनों कॉस्ट आ गई हैं। अब हमारा ये भी आ गया है जो हमें दिया हुआ था इन्होंने, 41। और नंबर ऑफ पोर्शंस जो हमारे थे वो भी निकल के आ गए, वो 180। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट। अब हम उसको निकालने के लिए वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। परचेज प्राइस कॉस्ट हमारा डॉलर 41.40। और हमारा नंबर ऑफ जो टोटल है वो कितना है, जस्ट अ मोमेंट, 180। ठीक है, तो व्हेन वी कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज, तो हमारा आंसर तकरीबन आना चाहिए इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। डॉलर में अमाउंट आएगा, डॉलर में आएगा 18 दूनी 36, पॉइंट पॉइंट में आएगा कुछ 0.2, इतना कुछ आएगा। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ओके, so this is the our standard cost. So that is how we can calculate the standard cost with this method, which is the formula method, standard portion cost. अब हम इससे क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? अब हम इससे ये इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हमारा जो एक ब्रेकफास्ट था ना, ये उसको बनाने में हमें इतने रुपए की लागत आती है, $0.23 की लागत आती है। इसीलिए हमने इसको कैलकुलेट किया। समझ आया सभी को? यस सर। एक ब्रेकफास्ट एक ब्रेकफास्ट बनाने में हमें 2 अंडे लगते हैं और हमारी जो कॉस्ट आती है वो इतनी आती है। अब हम इससे हमें क्या मदद मिलेगी, जब हमें पता होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी क्या है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हमें ये फायदा हो जाएगा कि हम इसकी सेल्स कॉस्ट क्या रखें। अभी हमारे ऊपर है कि हम इसकी सेल्स कॉस्ट क्या रखें पर यूनिट की, एक ब्रेकफास्ट की। चाहे तो हम इसको रख दें $2, $2 का एक ब्रेकफास्ट, चाहे तो हम 4 रख दें, ये हमारे ऊपर है। लेकिन हमें ये भी चीज देखनी होगी मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट में कैसा कंपटीशन है। अब ऐसा नहीं है हमारी कॉस्ट आ रही है 0.23 की और हमने इसकी कॉस्ट कितनी रख दी, $20, ये बिकेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो यू हैव टू मेंटेन योर ऑल दी सेल्स प्राइस। तो अब जब अपना मेनू प्रिपेयर करोगे, जहां पर आप ब्रेकफास्ट की कॉस्ट मेंशन करोगे अपने मेनू में, तो वहां पर आप ब्रेकफास्ट का जहां पर कॉलम आएगा वहां पर आप अपनी जो ब्रेकफास्ट मेंशन करेंगे, वो जो पर ब्रेकफास्ट होगा एग वाला, वो $2 का, $4 का, अपने अकॉर्डिंग आप सेल्स उसका प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टूड? हमें क्यों जरूरत है इसकी, स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट की क्यों निकाला जाता है? समझ आया क्या इसका इंटरप्रिटेशन है? सभी को समझ आया ये सर एक बार और बता दीजिए। इसका इंटरप्रिटेशन?
तो इसका इंटरप्रिटेशन हम ये करेंगे कि जब हमें हम इसकी जरूरत क्यों हमें स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट की, जब हमें पता है कि एक यूनिट में हमें 2 अंडे लगते हैं। ये तो पता है हमें कि क्वांटिटी कितनी लगती है, पर हमें इतना नहीं पता कि हम जो इसमें हमारी लागत कितनी आती है इन डॉलर। ठीक है, पैसों में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो करेंसी में हमें कितने पैसे लगते हैं इसको वो करने में, इसकी ये नहीं पता, लेकिन हमारी कितनी क्वांटिटी लगती है ये मालूम है। अब इसको निकालने के लिए ही हमें स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि हमारा एक ब्रेकफास्ट को बनाने में कितने पैसे लगते हैं, हम अपनी जेब से कितने पैसे भर रहे हैं एक ब्रेकफास्ट को बनाने में। ठीक है, जब हमें ये पता लग जाएगा तो हम उसका जो सेल्स प्राइस है वो डिसाइड करने में हमें आसानी होगी कि हमारा जो एक ब्रेकफास्ट का जो सेल करेंगे हम उसको किस रेट पे सेल करें। तो ये बहुत जरूरी है, जब तक हमें अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट ही पता नहीं होगी, स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट, तो हम वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द सेल्स प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वी कैन नॉट मेक द मेनू। ओके, जब हमें अपना ही पता ही नहीं, इसको आप ऐसे समझो, अगर हमने एक थाली हमें एक प्लेट बनाने में, एक प्लेट कोई भी अगर मोमो है या फिर मोमो किसी आपका अगर ले लेते हो एग्जांपल सिंपल वे में, तो आपको एक प्लेट मोमो में कितना पैसे लगते हैं बनाने में आपके खुद के, जिससे कि आपको आप उसको अपनी सेल अपने अकॉर्डिंग सेल कर सको अपनी मेनू प्राइस में। ठीक है, तो इसलिए इसकी जरूरत है। आप समझ आया? Yes, sir. This is how we calculate the standard portion cost. Whenever we are going to calculate the standard portion cost, this is goes to the directly 1 unit, यानी कि 1 unit हमारी क्या है, 1 breakfast। Okay, each unit how much we are how सर much आपकी cost, स्क्रीन सही से शो नहीं हो रही। how much the cost we require। Okay, so this is how we calculate the standard portion cost with the help of the formula method. Moving further to the next method, which is the further to the next method, which is the recipe detail and cost card. For recipe detail and the cost card for menu item produced from standard recipes, it is possible to determine the standard cost of one portion। जो हमने पहले भी निकाली थी, वन पोर्शन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली थी। ठीक है, कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम कॉस्ट बोलेंगे तो हम इसको करेंसी में ही निकालेंगे। ठीक है, इसको ग्राम में किलो में नहीं निकालेंगे हम, या फिर क्वांटिटी में नहीं निकालेंगे। वी कैलकुलेट ऑल द कॉस्ट इन करेंसी बाय यूजिंग a form known as a recipe detail and cost card। अब एक मेथड था हमारे पास जिसमें हमने अपनी वैल्यूज रख के हमने अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल ली। दूसरा मेथड है हमारे पास कॉस्ट कार्ड के थ्रू, कि हम वो हमारा कॉस्ट कार्ड है उस मेथड से हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें सारी मेंशन ही होती है, इसमें कोई आपको ज्यादा वो नहीं करना। जो आपका पहला वाला मेथड हमने बताया था वो ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, सबसे ज्यादा उसी को यूज करते हैं एफएनबी ऑपरेशन में। तो वी आर गोइंग टू सी दिस एग्जांपल, दे हैव मेंशन दी recipe detail and cost card। In recipe detail they have mentioned all the ingredient they have used। जैसे हमने पढ़ा, whenever we are going to calculate the standard cost, तो स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कितने हमारे इंग्रेडिएंट हैं, उनका क्या टैरिफ हमने लगाया है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी हमने उसकी यूज की है, किस प्रोपोर्शन में की है। सो दीज, और हमारा हमने एक पढ़ा था कुकिंग मेथड, जो हमारे प्रोडक्शन मेथड हैं वो भी हमारे जो स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। अब इन्होंने जो हमने पढ़ा था पहले वही इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। ये आइटम है जिन मार्टिन। ठीक है, ये आपकी बेवरेज है। ओके, अब ये बेवरेज है, इसको बनाने में
कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगे हैं पहले तो ये देखते हैं। ये है गोल्डन जिन, फिर मार्टिनी रोजी, फिर कॉकटेल ओलिव। ठीक है, ये हमारे 3 मेन हमारे क्या है, ये इंग्रेडिएंट लगे हैं हमारे इसको बनाने में, जिन मार्टिन को। ओके, तो इनकी क्वांटिटी क्या क्या ली है हमने। जो गोल्डन जिन है उसकी हमने क्वांटिटी ली है 2 ऑन्स। ये OZ का मतलब ऑन्स से है यहाँ पर, ठीक है। ऑन्स से, ऑन्स, ठीक है। देन हमने मार्टिन रोजी की जो क्वांटिटी ली है वो ली है हाफ ऑन्स। और कॉकटेल के लिए हमने कॉकटेल ऑलिव। अब ये ई लिखा है इन्होंने, इसका मतलब होता है ई मतलब ईच। ईच यानी हमें एक, अगर यूनिट हम जिम मार्टिन की बनाएंगे तो हमें उसके लिए एक चाहिए रहेगा, एक कॉकटेल ऑलिव रहेगा, चाहिए रहेगा, ठीक है। और ये इसका टोटल है, इसको हमें नहीं देखना अभी, ये तो इन सबका टोटल है। हमने इसको सबको टोटल का पार्ट जब भी हम बात करेंगे तो सबका टोटल होता है, इसको हम प्लस कर देते हैं इन सबको। इसको भी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। तो दीज आर दी टोटल। अब इनकी कॉस्ट क्या है वो यहाँ मेंशन ऑलरेडी की हुई है, ये हमें हमने निकाली नहीं है, ये हमें ऑलरेडी मेंशनड है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमें। अब जैसे हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रहे थे, वहाँ पर हमारा आइटम क्या था, ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर हमारा आइटम है जिन मार्टिनी, ठीक है। ये बार की रेसिपी है, बार रेसिपी नंबर 53। तो इसके थ्रू हम ये बना रहे हैं, ये इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और जो हम यूज कर रहे हैं वो है ग्लास वेयर में, एक एक को सर्व करने के लिए हम 4 ऑन्स कॉकटेल यूज करेंगे, ठीक है, ये है। और इसका यहाँ पर मेथड दिया हुआ है, किस मेथड से हमने इसको बनाया है। तो जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वेन एवर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट, वी नीड टू understand all these ingredients which we have used and what quantity we have used, proportion we have used to prepare the product। और तीसरा हमने पढ़ा था कि what method we have used for the production। तो तीनों मेथड हमने यहाँ पर मेंशन है, और हमें यहाँ पर कॉस्ट ये ऑलरेडी मेंशन की हुई है। अब हमें अगर पता लगाना है कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या निकली है एक यूनिट बनाने में, तो ये हमारी कॉस्ट निकली है 1 पॉइंट, जो हमारी पहले कितनी निकली थी, ब्रेकफास्ट को बनाने में हमारी कितनी निकली थी, $2.3। और इसको बनाने में हमारी निकली बेवरेज है, इसको हमारी बनाने में कॉस्ट जो लगी है वो लगी है $1.02। अब हम पता हो गया कि हमारे ये दोनों ही क्या है, स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट। ये भी स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट है, और ये भी हमारे स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट है। दोनों ही हमारे स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट है। ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट के लिए, और ये हमारा हो गया बेवरेजेस के लिए। तो दोनों ही हमारी क्या है, स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट है। यहाँ हमें ऑलरेडी हमने कार्ड से कैलकुलेट की है, और वहाँ हमने फॉर्मूले से की थी, जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ था, बाय डिवाइडिंग दी ऑल दीज आइटम्स, बाय डिवाइडिंग द आइटम फॉर पर यूनिट के हिसाब से हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया था। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट। This is how we calculate the standard portion cost for the beverages when we are having the standard menu card. When we are having the recipe detail and the cost. अगर हमारे रेसिपी डिटेल है, ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट दीज आइटम्स बाय टोटलिंग। हमने इसको इससे निकाला टोटल करके। ओके, यहाँ पर इन्होंने इन ब्रीफ मेंशन कर दिया है, ऊपर आपको देख रहे होंगे यहाँ पर ब्रीफली इन्होंने मेंशन करके दिया है कि आपको यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या था, जिन मार्टिन, ठीक है। और जो हमारी ड्रिंक की सेल है इन्होंने डिसाइड कर ली है 4.50, ठीक है, ये इन्होंने खुद डिसाइड की है अपने अकॉर्डिंग। इसमें प्रॉफिट लगा के, इसमें सर्विस चार्ज लगा के इन्होंने ये सेल्स, यानी हम इस प्राइस पे इसको बेचेंगे पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट का कॉस्ट है ये। और ड्रिंक कॉस्ट जो है हमने ये निकाली है, जो हमारा स्टैंडर्ड पोर्शन साइज है वही हमारी ड्रिंक कॉस्ट है, ठीक है। और कॉस्ट परसेंटेज यहाँ पर ये है, अगर हम कॉस्ट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो हमारा सेल्स प्राइस है और हमारा जो कॉस्ट है उसमें कितना परसेंटेज का फर्क आ रहा है, वही हमारा कॉस्ट परसेंटेज होगा, ठीक है।
So all these things, this is how we can calculate the standard portion cost with the help of the recipe detail and cost card. Moving further to the next method, जो है हमारा बुचे. Butcher method or butcher test. When meat, fish, and poultry, meat, fish, and poultry are purchased as wholesale cut. Okay, in wholesale rate, the purchaser pays the same price for every pound of the item purchased, even though after butchering. Okay, the resulting parts may have entirely different values. For example, if they have given the example, a particular cut of beef. ये मेथड आपका मीट में ज्यादा अप्लाई करके दिखा है, इन्होंने दिखाया है कि if we are going to talking about particularly cut of the beef is approximately half fat and half usable meat. ओके, उसमें हाफ फैट है और हाफ यूजेबल मीट है. द टू पार्ट्स क्लियरली हैव डिफरेंट यूज एंड डिफरेंट वैल्यूज. इसकी फैट की अलग वैल्यू है, इसका अलग यूज है, और जो यूजेबल मीट है उसकी अलग वैल्यू है और उसका अलग यूज है. ओके, इवन दो दे वर परचेज एट सेम प्राइस पर पाउंड बिकॉज बोथ वर पार्ट ऑफ वन होलसेल कट. अब इसमें होलसेल कट अमंग अदर पर्पज द बुचर टेस्ट is designed to establish rational values the primary part of wholesale piece. तो इसमें आपको वैसे हो सकता है समझ में आया हो, हम आपको सिंपल वे में बताते हैं. अगर हम किसी मीट की बात करते हैं, इन्होंने बीफ का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो बीफ के हमारे पास दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है फैट, जो नॉनवेज है वो समझ रहे होंगे इस बात को. ठीक है, पहला होता है हाफ वे होता है इसका फैट का, प्लस और एक होता है आपका यूजेबल मीट. अब जब हम बीफ उसको अगर बूच होगा ना, उसको जब काटेंगे, उसका जब कट करेंगे तो होगा तो एक ही ना, उसको उसकी फैट और यूजेबल को अलग तो कर नहीं सकते हैं. यूजुअल में ही फैट भी होगा. तो इसलिए जो अगर कोई परचेज, जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट फूड कोर्ट वाला हूँ, मेरा कोई बिजनेस है, मैं नॉनवेज सर्व करता हूँ, तो मैं जब जाऊँगा उसको लेने के लिए, तो मैं उसको पर यूनिट के हिसाब से परचेज करूंगा. ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे फैट वाला पोर्शन दो या फिर मुझे यूजेबल वाला मीट वाला पोर्शन दो. ये दोनों अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं हम. ठीक है, वो तो हम अपने बाद में आके जहाँ पर हम बना रहे हैं, वो हम मेरे शेफ या फिर मेरे जो स्टाफ है वो करे. लेकिन वहां पर तो वो जब वो उसको बुचरिंग हो रही है उसकी, तो वो तो एक ही तरह से काटा जाएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो देंगे. तो वी कैन नॉट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. फैटेबल यूज को हम यूजेबल वीट से अलग नहीं कर सकते. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज दी बुचर टेस्ट टू अंडरस्टैंड दी कि हमारा फैट वाला कितना है, यूजेबल कितना है. ओके, टू रिड्यूस और टू डिटरमाइन दी पोर्शन कॉस्ट. तो दिस इज दी कि अब जब हम होलसेल में ले रहे हैं इसको, तो ये टेस्ट हमने इसीलिए डिजाइन किया है, ये जो टेस्ट है उसीलिए डिजाइन किया गया है कि जिससे हम अपनी प्राइमरी पार्ट का जो होलसेल पीस है, ठीक है, उसका कॉस्ट निकाल सके रेशनल, कि फैट वाले का क्या होगा, यूजेबल वाले का क्या होगा. ओके, तो दे हैव गिवन दिस एग्जांपल. नाउ वी आर मूविंग फर्दर दी शीट विच दे हैव गिवन. ये इनकी शीट है, बुचर टेस्ट कार्ड. ये इसका है आइटम जो है लैम्ब लॉयल. ठीक है, ये इसका ग्रेड है यूएस चॉइस, ये डेट है. ठीक है, पीस एक, ये सारे पीस हम वन में ही कर रहे हैं. ठीक है, मतलब ईच में कर रहे हैं, यानी कि यूनिट में कर रहे हैं. इसका वेट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 10 lbs एंड 0 ounce. ये हो जाएगा 10 pound एंड 0 ounce. जैसे हमारा होता है किलोग्राम और ग्राम, उसी तरह से पाउंड और ऑन्स होता है. ठीक है, अपर इसका जो अमर अपर मेजरमेंट इसका है पाउंड, और देन फिर वी मेजर दी फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द ऑन्स. यहाँ पर इसका एवरेज वेट आएगा. सप्लायर का नाम, ठीक है, ये सप्लायर का नाम है, कोई सप्लायर है एग्जांपल के तौर पे, इव टू मेट कंपनी.
किस कॉस्ट पे इसने दिए हैं और टोटल कॉस्ट क्या है, ये यहाँ से इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये इनकी है ना, देखो सबका अलग अलग इसने दिया हुआ है। ये यूजेबल मीट है, ये इसका फैट है। ओके, ये किडनी है, ये फ्लैंक्स है, ये लॉस ऑफ कटिंग है। लॉस ऑफ कटिंग में आपका वो है जब आप ला रहे हो उसको, उसके बाद उसको उसकी सफाई करके आप जितना उसका लॉस होता है ना, यानी कि कई बार होता है, जो नॉनवेज होंगे वो समझ रहे होंगे कि जब हम मीट लेके आते हैं तो उसमें से ये नहीं कि सारा जितना हमने, अगर 2 किलो 2.5 किलो 5 किलो लेके आए हैं तो 5 का 5 किलो ही बन जाएगा। उसको सफाई करके उसको सफाई करके जब बनाते हैं तो वो 5 का फिर कितना हो जाता है, 4.5 4 या फिर 3.5। ठीक है, तो दिस इज द प्योर मीट वी कैन प्रिपेयर फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ कटिंग। नेक्स्ट है किडनी वाला पार्ट है, फैट वाला पार्ट है, इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, किडनीज में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये इनका वेट दिया हुआ है इन्होंने। ये एलबी मतलब क्या है यहाँ पर, एलबी मतलब यहाँ पर पाउंड से है, और यहाँ पर इनका ये ऑन से है। ठीक है, ये पाउंड की वैल्यूज हैं, ये ऑन्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, यानी कि फैट है 2 पाउंड एंड 12 ऑन्स। ऐसे ही किडनी का जो पाउंड में नहीं है ये ऑन्स में है। फ्लैंक्स है 1 पाउंड 4 ऑन्स। लॉस ऑफ कटिंग हमारे 4 ऑन्स की हो गई है। यूजिबल मीट कितना रह गया हमारा, ओनली 5। हमारा यूजिबल मीट है जो 5 ऑन्स है। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी रेशोज एंड वैल्यू पर पाउंड इन्होंने दी हुई है कि 1 पाउंड की वैल्यू कितनी है। फैट की पर पाउंड की वैल्यू 0, किडनी की पर पाउंड की वैल्यू 5.87, फ्लैंक्स की 4.49, और लॉस ऑफ कटिंग, ये तो लॉस ऑफ कटिंग मतलब 0 हट गया पूरा ही। इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। ठीक है, सो हेयर दे हैव मेंशन दिस इज दीज आर दी ब्रेकडाउन्स विच, जहाँ पर हमने देखा कि इसमें क्या क्या इसके जो होते हैं एक हमारे मीट में, वो देखा हमने। फिर हमने यहाँ पर नंबर देखे, फिर यहाँ पर वेट हमने इसको लिया है, फिर रेशोज लिया, कितने रेशो में हमने ली है चीज़ों को। फैट 27%।